Hello students and welcome to this video. Students, today I am introducing you a new and novel idea that is helpful for those students who are preparing for RIMC entrance examination. And I have taken up this challenge for those students who are striving for perfection or striving for admission to RIMC. That's why I have made this competition a mission, and I call it Mission RIMC. Students, this video has been exclusively made by me for the students who are presently in class 7th or in class 6th, because students of these two classes can appear at this competition. I suppose most of the parents are not aware of this competition. RIMC means Rashtriya Indian Military College, Dehradun. This college conducts entrance examination twice a year for the students who are in the age group of 11 and a half to 13 years. I will send you more details about this competition in a brochure. But this video is meant for beginning some important lesson regarding English. A paper of English is also conducted in this competition, which carries 125 marks, in which grammar portion covers 55 marks. That's why I mentioned it at the top of the whiteboard. And this is grammar section including vocabulary, which contains 55 marks. So students, I am going to begin this very important topic concerning transformation. As you are paying attention to this video, you need to know what type of questions are normally asked in this paper. That's why I am starting this video today with a topic that is very important for students. Rewrite the following sentences as directed. इन sentences के अंदर जो डायरेक्शंस दी गई हैं, उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना होता है स्टूडेंट्स. सेंटेंस नंबर 1 को अगर हम लेते हैं तो ये सेंटेंस कहता है, as soon as the curtain came down, the applause rang out. Students, we are asked by the examiner to begin this sentence from no sooner. This is again an important rule. This clause is related to adverb clause. This rule is very simple, but I will teach you not the rule but the concept behind such sentences.
because these are very important sentences. So students, let us begin and transform these 7 sentences on the left side to be made according to the instructions given at the end of the sentence. So let us begin. Our first sentence का मैं आपको सबसे पहले I will tell you the concept behind such sentences. All these sentences in some way or the other are related with a rule called inversion. Normal order of the sentence, students, is subject plus verb, but in inversion, verb comes before subject. And if you follow this concept and memorize it, after understanding all the details of the rule, you will have no difficulty in transforming such sentences. चलिए बिगिन करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से. जब भी ये सेंटेंस आपके स्टूडेंट आए एग्जाम में, यू नीड नॉट वरी एट ऑल, जस्ट बिगिन योर सेंटेंस. उसमें कह रहा है वो आपसे कि नो सूनर से बिगिन कीजिए. आप यहां पर स्टूडेंट्स नो सूनर लिख दीजिए. नो सूनर हमने यहां पे लिख दिया. अब नो सूनर के बाद आप स्टूडेंट्स एक वर्ड की जगह छोड़ दीजिए. लीव अ स्पेस फॉर वन वर्ड and then write the subject. Our subject in this clause is the curtain. हमने यहां पे the curtain लिख लिया. Now we need to pay attention to the tense used in this clause. इसमें यूज हुआ है past indefinite tense. इसे हम इन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्जन में हम यहां पर इसमें लगाएंगे हैड, और हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉर्म यूज होगी और वो आएगी आफ्टर सब्जेक्ट. नो सूनर हैड द कर्टेन, थर्ड फॉर्म हो गई कम डाउन. उसके बाद आपको इन्वर्जन में ये याद रखना है कि हमें यहां पर देन लगाना है और उसकी स्पेलिंग होगी THAN. डोंट फॉरगेट टू पुट देन आफ्टर दिस क्लॉज इज ओवर. यू नीड टू राइट डाउन देन, एंड आफ्टर दिस कंप्लीट दिस क्लॉज विदाउट चेंजिंग एनी modifications. Then the applause rang out. तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेंटेंस इस प्रकार ये बन गया. नाउ वी टेक द सेकेंड वन. As soon as the bell rang, the children rushed out of the class. This sentence is again the same as we have formed the first one. This will also follow the same concept. चलिए स्टूडेंट्स इसे भी बनाते हैं. As soon as the bell rang, सबसे पहले आप no sooner पुट कीजिए, पुट no sooner, then subject the bell, यहां पे हैड आ गया. नो सूनर हैड द बेल रंग, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी. देन डोंट फॉरगेट टू पुट देन. ये मैं स्ट्रेस दे करके कह रहा हूं आपसे कि स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती कर देते हैं. आइदर दे राइट द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ देन. THEN is normally put by many students. They commit such a cross blunder. Then THEN यूज नहीं होना. We need to use THAN. No sooner had the bell rung than the children. अब इसमें क्लॉज में हमें कोई चेंज नहीं करना. Then the children rushed out
ऑफ द क्लास। अब इन्वर्जन की बात पे फिर आ जाते हैं। इन्वर्जन हम देखते हैं कि किस प्रकार इन्वर्जन यूज हुआ। यहां पर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट ये है फर्स्ट सेंटेंस में, और वर्ब जो हमारा यूज हुआ हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब वो यहां पर यूज हुआ। दिस सेंटेंस में सेकंड में द बेल यहां पे है, और उसके बाद यहां पर एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, उसके बाद हमारा यहां मेन वर्ब आया। इस सेंटेंस में यहां पर मेन वर्ब आया। But third sentence is a bit different from the first two sentences. जो third sentence है वो थोड़ा सा अलग है, but the concept behind the third one is the same as we have used in the first two sentences. Now we take up the third one. Third sentence goes like Sachin stood first at class and he also excelled at debate. Students, we have to begin this third one from not only. This sentence again is inverted. We have to use the inverted form of the verb. या फिर आप ये कह लीजिए कि जब भी नेगेटिव एडवर्ब या किसी एडवर्ब से सेंटेंस की बिगिनिंग होती है, we are bound to use inversion. हमें इन्वर्जन उसमें यूज स्टूडेंट्स करना ही है। तो शुरू करते हैं। नॉट ओनली से बिगिन है तो हमने यहां पर नॉट ओनली लिख लिया। नाउ अब आपको स्टूडेंट्स आपको वर्ब पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट है हमारा सचिन, हमने सचिन लिख लिया यहां। अब सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस है तो हमें यहां पर यूज करना है डिड। नॉट ओनली डिड सचिन, डिड के बाद यहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टैंड फर्स्ट एट क्लास बट also excelled at debate. थर्ड सेंटेंस के अंदर भी स्टूडेंट्स हमने इन्वर्जन को ही फॉलो किया है। ये देखिए यहां पे नॉट ओनली से बिगिन हुआ, सचिन हमारा सब्जेक्ट है और उससे पहले हमारा ये एक्सिलरी वर्ब आया, इसे हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। उसके बाद हमारा ये मेन वर्ब आया, ये हमारा मेन वर्ब है। तो इस प्रकार इन्वर्जन को हम यूज करते हैं। फोर्थ सेंटेंस के अंदर एक और रूल इंट्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स, और वो है हार्डली से बिगिन करना है हमें सेंटेंस को। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें। हम सेंटेंस को सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं कि नो सूनर हैड राम नरेटेड द स्टोरी देन ही वाज प्रेज्ड। वी हैव टू बिगिन द सेंटेंस बाय यूजिंग हार्डली। नो मैटर, आप सबसे पहले यहां पर स्टूडेंट हार्डली लिख लीजिए। उसके बाद आप राम सब्जेक्ट लिख लीजिए राम। अगेन सेंटेंस में आपको पता है कि हैड यूज होना है, तो हार्डली हैड राम narrated the story then, यहां पर आपको then यूज नहीं करना। यहां पर आपको हार्डली और स्केर्सली से अगर सेंटेंस बिगिन होता है तो इन्वर्जन में आपको यहां पर when यूज करना होगा। Hardly had Ram narrated the story when he was praised. Hardly had Ram सब्जेक्ट से पहले आपका एक्सिलरी वर्ब है, और यही इसका कॉन्सेप्ट है। देन मेन वर्ब रखिए। उसके बाद अगर हार्डली से बिगिन हो रहा सेंटेंस तो वैन आपको दिमाग में रखना है, और अगर नॉट
अगर नो सूनर से सेंटेंस है तो आपको देन आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट एक और है इन्वर्जन का सेंटेंस कि आई हैव नेवर सीन मिस जूली लॉस हर टेम्पर। इतना ही सेंटेंस है और इस सेंटेंस की बिगनिंग वो आपसे नेवर से करा रहा है। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, इसमें भी वी हैव नो डिफिकल्टी एट ऑल। नेवर से बिगिन करना है तो नेवर से बिगिन कर दीजिए, यहां पे लिखेंगे नेवर। उसके बाद सब्जेक्ट आपका आई है, यहां पर लिख दीजिए आप आई। उसके बाद आप देखिए कि आपका एक्सलरी वर्ब कौन सा है। एक्सलरी वर्ब आपका हैव है तो आप यहां पे हैव लिख दीजिए, नेवर हैव आई सीन। मेन वर्ब आ गया आपका, मिस जूली लॉस हर टेम्पर, लॉस हर टेम्पर। स्टूडेंट्स ये बन गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट आता है सून एज द चीफ गेस्ट अराइव्ड द बैंड स्टार्टेड प्लेइंग। स्टूडेंट्स ये मैं आपके होमवर्क के लिए सेंटेंस को छोड़ रहा हूं। और स्वाति प्लेज बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये लास्ट टू सेंटेंसेस आई हैव गिवन यू फॉर प्रैक्टिस। और इनको आपको, इन दोनों सेंटेंसेस को आपको बनाना है। इफ यू मेक इट करेक्ट आई विल टेल यू अबाउट these two sentences in the next video. That's all in this video. And students, I am making a humble request for you because this is my first video so far as this prestigious competition RIMC is concerned. I make a humble request to like or subscribe my channel and put comments if possible so that I may energetically make some more videos for the students preparing for this competition. That's all in this video, students. Thank you.